Hello and welcome to Crack Grade B. My name is CA Jeevan and today we are going to take the GST portion of Assistant Director Cost Examination. So we have syllabus of 2022 examination and in that exam GST's syllabus is mentioned in quite detail like supply, then chargeability, time, value, input tax, credit, assessment and audit. So these kind of topic is mentioned over there. So we'll take each and every aspect of this topic. The second thing is the class will be totally, if I can say, factual and revisionary class. Just a minute. Factual and revisionary class. So here we'll not going to take the detailed discussion or I can say conceptual questions or numerical questions of great length. Correct. So I hope as the qualification mentioned that the candidate must be CA or CMF. Correct. So you guys already know the topic very well. I'm just giving you a brief summary or I can say to the point revision. To the point revision. Here we'll not miss any sorts of factual details which may become a potential question for you in the examination hall. So each fact which we feel necessary will definitely cover in this series. And the second thing is here the PDF which I have giving to you or which I am using to do this class is based on the ICA study material of CA final, correct? So in case you need detailed discussion or detailed understanding, you may refer that material ICA CA final study material of GST or indirect tax law. Here in the crack grade B, what we are doing, just a minute. This time we are taking these examinations quite a great scale. So we'll provide you the study material in PDF format, classroom for revision and discussion also. Then we'll also give you test based on this and any sort of guidance is needed. So you may contact our institute crack grade B for this. So let's begin by discussing each and every topic. So first is GST in India, an introduction. So introductory lecture is this. Here we'll discuss each and everything which come into perspective of introduction. Just it is visible. So if I can put GST timeline over here. So timeline is in the year 2000, the Prime Minister introduced the concept of GST and set up committee to design the GST model in the country. Correct. Why I'm discussing the timeline? Maybe it become a factual questions or potential questions from somewhere around. ठीक है. तो किसी fact से हो सकता है. You don't have to memorize each and every fact in details, but just have a glimpse in case it may be needed. Correct. The first time committee is formed in 2000. Then in 2006, Finance Minister announced that by 1st April 2010, we're going to introduce the GST और GST लागू कर देंगे. In 2014, the GST was introduced first time in Lok Sabha. ठीक है, जो हुआ था 122nd Constitutional Amendment Act के थ्रू. But it is enacted in 2016 via 101 Constitutional Amendment Act. Then just a minute.
Yes. So in 2016, first GST Council meeting was held. Into March 2017, GST Council recommended these 5 acts, which become the framework of GST right now. So these 5 acts are CGST, SGST, IGST, UTGST, and GST compensation cess bill. Correct. So then these bill got passed in. First of all, it is bill. Once approved by the president, it become act after passing into parliament. Correct. So then it come to, again, GST Council recommended all the rules which supplement these. And then this GST, earlier it was due to Article 370 कि कुछ भी करते थे, that may or may not apply to state of Jammu and Kashmir earlier. So it was at that time given an exception. On the first July 2017, GST is launched, but not for Jammu and Kashmir. It was on 8th July for Jammu and Kashmir, and GST journey continued from here itself. Correct. So this is the broad timeline. Now come to the GST concept. The concept of GST के अंदर हम पढ़ेंगे what is GST. Correct. The first is it is based on value added tax. We'll take one example on this in coming slide or coming. So if I can put it simply, no value. So it is based on the value addition. तो जो भी suppose करो, this is manufacturer, then distributor, wholesaler, retailer, and consumer. So whatever value addition is done by the distributor or a wholesaler or retailer, the tax will be based on these value only. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि टोटल वैल्यू के ऊपर ही टैक्स बनेगा. ठीक है, टोटल वैल्यू के ऊपर ही अलग से टैक्स लगेगा. ठीक है, ये सिर्फ वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स लगेगा. आई विल जस्ट शोकेस बाय एग्जांपल इन कमिंग स्लाइड्स. नाउ the tax burden is borne by final consumer only. Correct. So if here I can say you ITC is passed on from distributor to wholesaler, wholesaler to retailer, retailer to final consumer. बट ये पास ऑन नहीं कर सकता, इसको अपने ही जेब से डालने पड़ेंगे. ठीक है. सो दिस इज व्हाट जीएसटी इज बॉर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर. नाउ इट इज कंटिन्यूसली चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट. डिस्कस दिस एंड द नो कास्केडिंग इफेक्ट. नो कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस, मतलब टैक्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा है इसमें. ठीक है, टैक्स के ऊपर कोई टैक्सेस नहीं लगता. आई होप यहाँ तक क्लियर है. देखो, एज आई ऑलरेडी नो दैट यू गाइस मस्ट बी सीए और सीएम में, तो मैं उसी हिसाब से डिस्कस कर रहा हूँ कि इसमें कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है. जस्ट नाउ कम टू द पॉइंट. हियर वी विल डिस्कस द चेन ऑफ आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और किस तरह से ये आगे को बढ़ता है. फर्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरर, देन डिस्ट्रीब्यूटर, देन रिटेलर एंड कंज्यूमर. तो हियर होलसेलर इज मिसिंग, कोई बात नहीं, 4 स्टेप में बहुत है. पहला जीएसटी का. मैन्युफैक्चरर ने कितना कॉस्ट करा, 1 लाख रुपीज. जीएसटी एट द रेट 18%, तो 18,000 रुपीज टैक्स हुआ. ठीक है, इनके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट मान के चलते नील था, क्योंकि आगे से जो प्रोक्योरमेंट था उस पर किसी भी तरह से कोई जीएसटी नहीं लगा हुआ था. ठीक है, और इन्होंने पहली बार बनाया गुड्स. यहाँ पे कितना पे करा होगा गवर्नमेंट को, बिकॉज टैक्स कितना बना था इस पे, 18,000 का. तो इसने पे कितना किया, अगेन 18,000 रुपीज इज पेड बाय देम. नाउ द डिस्ट्रीब्यूटर, आई होप इट इज विजिबल. डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या करा, दे इन वैल्यू एडेड और मेक अ प्रॉफिट ऑफ 11,200 रुपीज. करेक्ट. so sale price will be become 1,11,200. GST is at the rate 18%, so GST will be total 20,016, and input tax credit which it is paid, तो ये कितना बन गया था, 18,000. तो ये 18,000 जो है ना, जब इसने परचेज किया होगा डिस्ट्रीब्यूटर ने मैन्युफैक्चरर से, तो उस टाइम पे उसने कितना पे करा होगा,
1,18,000, तो ये 18,000 का जीएसटी जो है वो इसको मिल गया इनपुट। ठीक है, अब नेट पेमेंट कितना देना पड़ेगा इसको अपने जेब से? नेट पेमेंट देखो, जीएसटी ड्यू कितना है 2006, और अभी इनपुट कितना का मिला है 18,000 का, तो नेट विल बी पेड 2016। ठीक है, 2016। अब देखो इनपुट कितने का बन गया अभी फिलहाल के लिए, देखते हैं थोड़ा सा। आई होप इट इज विजिबल। थोड़ा सा विजिबिलिटी को देख लेना प्लीज, क्योंकि ना स्लाइड्स जो है ना ये वहीं से लिए गए हैं आईसी के स्टडी मटेरियल से, इनका साइज जो है ना उसी हिसाब से, बुक के हिसाब से। ठीक है, तो नेट पेमेंट इज 2016। अब देन रिटेलर ने क्या करा, अपनी वैल्यू एडिशन करा 20,464। अगेन सेल प्राइस हो गया 1,35,000, जीएसटी बना 24,451 का, क्योंकि यहाँ पे टोटल जीएसटी कितने का इनपुट बना हुआ था 2016 का, ये इनपुट हो गया। फाइनल पेमेंट कितने का बना 4435 का, करेक्ट। तो इनके लिए जीएसटी कितना पे हुआ 4435, जो इनको देना पड़ा। नाउ कम टू द पॉइंट। तो अगर देखोगे ना तो ये सारे के सारे जो है ना, अगर 4435 कितने पे टैक्स बनता है, तो देखो 2464 का 18%, इट बिकम इक्वल टू 4435। दिस इज द वैल्यू एडेड बाय whom? द वैल्यू एडेड बाय रिटेलर। ठीक है, तो ये इसी के बेस पे ये टैक्स लगा है। ठीक है, नाउ लास्ट में कंज्यूमर, तो कंज्यूमर ने टैक्स पे आउट करा। ठीक है, और टैक्स को पे करने के बाद टैक्स बोर्न बाय कंज्यूमर कितना होगा, इसको इनपुट टैक्स कितना मिलेगा, नील का, जीरो, क्योंकि क्या बोलते हैं आईटीसी कंज्यूमर को पास ऑन नहीं हो सकता। तो इनको क्या करना है, पूरे के पूरे जितने टैक्स बन रहा है वो सारा का सारा पे करना है। तो 24,451 इनको पे करना है। सो दिस इज व्हाट द डिश जीएसटी का टोटल आईटीसी कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आईटीसी का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करा। ठीक है, आई होप इसे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं, ऑल्दो मुझे जहाँ तक समझ है इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट, why there is need for GST in India. The need was because of deficiency in earlier erstwhile value added tax. तो वैट के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम थी। ऑल्दो एज अ सी आई नो बहुत मजे के दिन थे वैट के। ठीक है, अच्छा लगता था उस टाइम पे, काम बढ़िया हो जाता था। चलो कोई नहीं, उसकी बात अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अभी इसी में आते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या था, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन इंक्लूजन ऑफ सेवरल लोकल लेवीज। ठीक है, तो दिक्कत क्या होता था, जब भी कोई लोकल, अब 50 तरह के टैक्सेस हो गए। ठीक है, अब कोई बिजनेसमैन, सपोज करो वन पर्सन मूव्ड फ्रॉम यूएसए एंड वांट टू ओपन अ वेयर हाउस और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन द स्टेट ऑफ पंजाब, देन इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अब उसको पंजाब की पूरी रेगुलेशन समझनी पड़ेगी, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता था क्यूमुलेट करना। ठीक है, अगेन सेम इज द केस विद तमिलनाडु। तो एक स्टेट को समझने में बहुत टाइम लग जाता था। ठीक है, उसकी सारी रेगुलेशंस गाइडलाइंस को फॉलो करने में बहुत टाइम लगता था। तो दिस वाज बिकम अ ट्रेमेंडस टास्क फॉर देम। इसी को रोकने के लिए, इसी को कम करने के लिए जीएसटी का आना बहुत जरूरी था। ठीक है, दो, उसके बाद था नो सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्सेस इन मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। यहाँ पे क्या था, एक्साइज ड्यूटी, अभी भी कुछ प्रोडक्ट पे एक्साइज ड्यूटी है स्टिल, कुछ पे सेंटर, कुछ पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी अभी भी लगा रही है। तो यहाँ पे क्या था, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। वैल्यू एडेड जब भी लगेगा ना, देखो इसका भी नाम था वैल्यू एडेड, तो वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स लगना, वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगना इज ओके, बट उस टैक्स को पास ऑन जब तक नहीं करोगे तब तक वो आईटीसी का चेन नहीं बनेगा, और चेन नहीं बनेगा तो दिक्कत क्या होगी, अगेन वो कास्केडिंग इफेक्ट बनना शुरू हो जाएगा, टैक्स के ऊपर टैक्स लगेगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट किसी को नहीं मिलने वाला। ठीक है, इसको ऐसे पकड़ लेते हैं। दूसरा क्या था, नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विसेज टैक्स। सर्विस टैक्स सेंटर लगाता था, वैट बाय स्टेट, एंड दोनों में कोई इंटीग्रेशन नहीं था,
और डिपार्टमेंट के अंदर भी इंटीग्रेशन नहीं था। जब डिपार्टमेंट बात करें जाओ तो सर्विस टैक्स का एक अलग ही पूरा चलता था, वैट का अलग ही चलता था, और दिक्कतें बहुत होती थी इस टाइम पे। नाउ डबल टैक्सेशन ऑफ सर्टेन ट्रांजेक्शंस, ठीक है, कई कई ट्रांजेक्शन पे डबल टैक्स होता था। क्यों? क्योंकि कभी कभार उसको एज अ गुड्स भी ट्रीट करके टैक्स लगाते थे और एज अ सर्विस भी ट्रीट करके टैक्स लगाते थे। एग्जाम्पल आपको खुद ही यहाँ पे कोट करना है, कौन कौन से एग्जाम्पल यहाँ पे डालोगे। एंड द कास्केडिंग इफेक्ट टैक्सेस ऑन अकाउंट ऑफ लेवी ऑफ नॉन वेटेबल जीएसटी एंड इंक्लूजन ऑफ सेन वेट इन वैल्यू फॉर इम्पोजिंग वैट, ठीक है। तो कास्केडिंग इफेक्ट जो है ना, एक तरह से टोटली रॉन्ग प्रिंसिपल बेस्ड टैक्सेशन का सिस्टम हो जाता है, रॉन्ग प्रिंसिपल बेस्ड, क्योंकि टैक्स के ऊपर भी, ठीक है, इसीलिए इसको हटाना बहुत जरूरी था। और इन सब प्रॉब्लम का जो ना एक सॉल्यूशन लेके आया वो है जीएसटी, ठीक है, अ क्योर फॉर इल ऑफ अर्सवाइल इनडायरेक्ट टैक्सेस रिजीम, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप इतने पे क्लियरिटी मिल रही है, तो मैं इसको एक्सटेंड नहीं करूंगा। तो फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी में क्या करेंगे, दिस इज इंट्रोडक्टरी सॉर्ट ऑफ लेक्चर, ठीक है। कुछ ऐसे ही डिस्कस नहीं कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो, जैसे स्पीड में इसको देख लो, ताकि एक बार फैक्चुअल डिटेल जो है ना दिमाग के अंदर वापस से रिफ्रेश हो जाए। तो ड्यूल जीएसटी है, ड्यूल मतलब सेंटर स्टेट, ठीक है। कई सारे कंट्री के अंदर यूनिटरी फॉर्म ऑफ जीएसटी भी है, ठीक है, जहां पे एक ही अथॉरिटी, सिंगल अथॉरिटी जीएसटी अप्लाई कर देगी होती है। यहाँ पे ड्यूल फॉर्म है, ठीक है, जहां पे जीएसटी सेंटर एंड स्टेट अपना राइट वो करती है। दूसरा है कि अगर हम देखें सी जीएसटी, एस जीएसटी, यूटी जीएसटी, आई जीएसटी कब कब लगता है, ठीक है। तो एक फ्लो के थ्रू देखते हैं। ठीक है, एज सिंपल एज इट। तो पहले हम समझते हैं आईजीएसटी के बारे में। तो हमने फॉरेन टेरिटरी से कोई प्रोडक्ट, एक मिनट, हमने फॉरेन टेरिटरी से कोई चीज इंपोर्ट करा, इसको मान के चलते यूएसए, हमने यूएसए से कोई चीज इंपोर्ट करा इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन विल बी कंसीडर। इस इंपोर्ट का मानते हैं इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। पहले क्या होता था, इंपोर्ट का पूरा ही स्ट्रक्चर जो था ना अलग था, कस्टम के अंदर था, और कस्टम ड्यूटी के हिसाब से वो डील करते थे, और उसमें पास ऑन करना बड़ा दिक्कत होता है क्रेडिट को लेके। यहाँ पे क्या है, आईजीएसटी ट्रीट कर दिया, अब आईजीएसटी पास ऑन होना शुरू हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट वन, यूएसए से इंपोर्ट करा इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा, ठीक है, और ये सारी सारी डीलिंग होगी आईजीएसटी के थ्रू। दूसरा क्या है, दूसरा, अगर महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र ही सप्लाई हुआ, महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र ही सप्लाई हुआ, in that case CGST and SGST will be levied, in that case CGST and SGST will be levied। उसके बाद इन केस महाराष्ट्र टू कर्नाटका माल गया, महाराष्ट्र टू कर्नाटका, इन दैट केस अगेन दिस इज इंटरस्टेट, ये इंट्रा स्टेट था, यहाँ पे फिर से इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है, एंड द इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन विल बी डील और विल बी लेविड बाय आईजीएसटी, यहाँ पे आईजीएसटी लगाएंगे, ठीक है। फिर से हम कहते हैं यहाँ पे विद इन कर्नाटका अगर सप्लाई करते हैं तो क्या होगा, अगेन सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, और कर्नाटका से फिर उसके पास वाली यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार को लेके गए, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या लगेगा, आईजीएसटी। और इन केस फॉरेन कंट्री से ही डायरेक्ट यूनियन टेरिटरी के अंदर कोई गुड्स मंगवा लिया, तो उस टाइम पे भी क्या लगेगा, आईजीएसटी, बिकॉज ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई। लेकिन अगर हम इट्स विथ इन अंडमान निकोबार ही सप्लाई करते हैं, इन दैट केस सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगेगा, क्या लगेगा, यूटीजीएसटी, और सीजीएसटी और एसजीएसटी स्टेट के केस में, ठीक है। अब ये बोलोगे सारे यूनियन टेरिटरी में ये सीन नहीं है, जितने भी यूनियन टेरिटरी है सब में जरूरी नहीं है कि सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगे। यू नीड टू मेक दैट लिस्ट, लाइक दिल्ली, पुडुचेरी, लिस्ट बना लो इसका कि किस में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है और किस में सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी लगता है। आई होप क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट विजिबल, ठीक है।
तो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क अगर देखें, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क मतलब जहां पे रूल्स रेगुलेशंस इस सब का जो बनाया गया, ठीक है, उसमें क्या क्या था, तो सीजीएसटी 2070, तो सीजीएसटी अक्रॉस इंडिया के लिए सीजीएसटी 2017 में बनाया गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, विदाउट लेजिस्लेचर, ठीक है, जैसे कि दिल्ली के पास खुद का लेजिस्लेचर है और अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री है जो कि तिहाड़ में है, ठीक है। अभी फिलहाल सॉरी हर ईडी कस्टडी में, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है मुख्यमंत्री है यहाँ पे, ठीक है। पुडुचेरी में भी मुख्यमंत्री है। कम टू द पॉइंट, यहाँ पे विदाउट लेजिस्लेचर कौन कौन सा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, लद्दाख, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़। तो ये गवर्न किसके थ्रू होता है, यूटी जीएसटी के हिसाब से, ठीक है। इसकी लिस्ट को याद करना बड़ा जरूरी है। आई एम गिविंग यू फैक्चुअल डिटेल बिकॉज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू टू रिवाइज क्विकली। नाउ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विद देयर ओन लेजिस्लेचर इंक्लूडिंग दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी। आप बोलोगे सर जेएनके में तो अभी लेजिस्लेटिव असेंबली तो है ही नहीं, ऑल्दो नहीं है, लेकिन फिर भी ये माना जाएगा क्योंकि इसमें असेंबली होगी, ठीक है। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर रखा है कि अब टिल द टाइम ऑफ सितंबर विल गोइंग टू कंडक्ट द इलेक्शन इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और उसके बाद तो होगा ही। हैव देयर ऑन जीएसटी लेजिस्लेचर फॉर एसजीएसटी। तो अगर सिंपल टर्म में बताऊं मैं इसको एक जगह, सीजीएसटी, सीजीएसटी और इस साइड पे यूटीजीएसटी और एसजीएसटी, ये कॉम्बो होता ना। दूसरा कॉम्बो क्या होता है अपने आप में, आईजीएसटी, ठीक है। देखो ये कॉम्बो लगेगा क्योंकि अगर टैक्स का रेट है 18%, तो आईजीएसटी विल बी एप्लीकेबल एट द रेट 18%। बट अगर टैक्स का रेट है 18%, तो यहाँ पे क्या होगा, 9% ये होगा, और 9% में इधर अब 2 होगा, कि इन दोनों में से कोई सा हो सकता है, ठीक है। तो सीजीएसटी छोड़ दो, सीजीएसटी तो सारे मतलब किस कंट्री के सारे स्टेट यूटी के अंदर अप्लाई होगा जब वो इंटर मतलब इंट्रा यूटी और इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। इंटर के अंदर में इंटर स्टेट या इंटर यूटी सप्लाई होगा तो इंक्लूडिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के केस में आईजीएसटी विल बी एप्लीकेबल हेयर ओनली। तो अगर वो यूटी है एक्सेप्ट द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा पुडुचेरी एंड दिल्ली, वहां पे यूटी जीएसटी लगेगा, ठीक है। और अदर सारे केस में जो है ना सीजीएसटी सॉरी एसजीएसटी लगेगा, ठीक है। एसजीएसटी इंक्लूडिंग दिल्ली, पुडुचेरी और कश्मीर के अंदर भी, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी लगेगा, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है। मैंने सारे फैक्चुअल डिटेल भी इसमें रखा है क्योंकि ये जो एक तरह से पीडीएफ हो या पीपीटी आपके साथ शेयर करूंगा, तो इट विल बिकम रिविजनरी पॉइंट फॉर यू, ठीक है। आई होप इट इज विजिबल। क्लासिफिकेशन जो है ना, जो पहले का था हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, जो हम यूज करते थे एक्साइज ड्यूटी के अंदर, उसी को यहाँ पे भी यूज कर लिया गया सेम, यूज फॉर क्लासिफाइंग द गुड्स। पढ़ेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है, थोड़ा सेंसल है, जस्ट टू गिव यू पर्सपेक्टिव हेयर। कंपोजिशन स्कीम इज ऑल्सो टू प्रोवाइड रिलीफ टू a small businessman, manufacturer, service providers, supplier to food article and traders making the intra-state supply. A simpler tax payment called composition levy is prescribed. ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जब भी कभी इस टाइप का है कुछ, तो उसके लिए क्या कर रखा है गवर्नमेंट ने, कंपोजिशन दे रखा है, लिमिट दे रखा है, इसके नीचे अगर कोई है तो क्या करेगा, कंपोजिशन को यूज कर सकता है। कंपोजिशन इज सिंपल, सिंपल टैक्स, ठीक है, जहां पे इनपुट आउटपुट का कोई चक्कर नहीं है, बस सिंपल से एक टैक्स रेट लगाया और काम खत्म। अब रजिस्ट्रेशन के लिए कंडीशंस डाल रखे हैं। कंडीशंस क्या, इन केस ऑफ स्टेट ऑफ मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ठीक है, स्टेट विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹10 लाख फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी हो जाता है। और भी केसेस हैं बट यहाँ पे ये जो है ना स्टेट, इसके लिए थ्रेशोल्ड कितना है, ₹10 लाख, ठीक है। स्टेट विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹20 लाख फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, 20 लाख है, सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए 20 लाख, ठीक है। स्टेट कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी एंड तेलंगाना। याद करने की जरूरत है, बिल्कुल याद करने की जरूरत है, मे बी फैक्चुअल क्वेश्चन अगर पूछा गया तो इसमें आ सकता है। नाउ कम टू द पॉइंट, स्टेट विथ थ्रेशोल्ड ऑफ 20 लाख फॉर सप्लायर ऑफ सर्विसेज बोथ गुड्स एंड सर्विसेज एंड थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर 40 लाख फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स इंटरस्टेट, ठीक है। डिटेल में डिस्कस करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो, अदरवाइज सिर्फ फैक्चुअल डिटेल समझो, ठीक है।
और एज अ सी बस रिकॉल कर लो एक बार के लिए, जम्मू एंड कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल अदर स्टेट, इन सब में क्या इस तरफ से एप्लीकेबल। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का ये प्रोविजन है कि इसमें एप्लीकेबिलिटी बनती है। नाउ कम टू एग्जाम्पशंस, तो एग्जाम्पशंस भी प्रोवाइड करा गया है। एग्जाम्पशन ग्रांटिंग पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑन एसेंशियल गुड्स एंड और सर्विसेज। तो एक दो गुड्स और सर्विसेज का नाम लिखो जो आपको लगता है एग्जम्प्ट है। प्रसाद के लिए एक हिंट है, बाकी आप देखना। ठीक है, इज इट विजिबल, नॉट विजिबल, चलो थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इसको। यस, अब पढ़ते हैं, उसी को रिवाइज करें एक तरह से। सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट जो हमने बात करी थी, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, तो कैसे? देखो, इंटर स्टेट सप्लाई है, तो जो एक्सपोर्टिंग स्टेट है, सप्लायर कैन सेट ऑफ क्रेडिट अगेंस्ट आईजीएसटी पेबल ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। तो जो भी पहले से इसका आईटीसी पड़ा हुआ था, इनपुट टैक्स क्रेडिट, सपोज करो इसके पास भी कोई आईजीएसटी का इनपुट टैक्स पड़ा हुआ था, या उसी सीक्वेंस में सीजीएसटी एसजीएसटी था, जब इसने सप्लाई करा तो इसने क्या करा, उस आईजीएसटी के साथ इसको एडजस्ट कर दिया। तो नाउ अमाउंट इज किसके खाते में चला गया, एक तरह से मान के चलो गवर्नमेंट के पास चला गया, सेंट्रल के पास। फिर इंटरस्टेट परचेज करेगा तो बायर कैन अवेल क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन इंटरस्टेट परचेज, क्योंकि इसने भी अगर कहीं से परचेज करके लाया होगा तो सेम सिनेरियो विल बी डन। रेवेन्यू फ्रॉम इंटरस्टेट सेल, ठीक है, डज नॉट एक्रू टू एक्सपोर्टिंग स्टेट। क्यों? क्योंकि जीएसटी है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। एक्सपोर्टिंग स्टेट ट्रांसफर क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी यूटीजीएसटी यूज इन आईजीएसटी पेमेंट टू द सेंटर। ठीक है, नाउ क्रेडिट ट्रांसफर कैसे करेगा, सेंटर कैसे करेगा? सेंटर ट्रांसपोर्ट टू इंपोर्टिंग स्टेट, जहां पे इस गुड्स की डेस्टिनेशन होगी, सर्विस की डेस्टिनेशन, द क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी यूज इन पेमेंट ऑफ एसजीएसटी यूटीजीएसटी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन अगर बात करें तो ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन, ऑर्डर, देखो सबसे पहला क्या था, आईजीएसटी क्रेडिट विल बी एडजस्टेड विथ आईजीएसटी, सबसे पहला, देन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। ठीक है, पहले आईजीएसटी को आईजीएसटी के आउटपुट के साथ एडजस्ट कर सकते हो, बाकी जो बच गया वो यूटीजीएसटी, एससीएसटी और सॉरी एंड और सीजीएसटी के साथ कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल लेके अगर करना चाहें तो भी कर सकते हैं, सिंपल सा है। अगर 50,000 का आईजीएसटी पड़ा हुआ है और 30,000 रुपये का आईजीएसटी देना है, तो सबसे पहले तो आईजीएसटी के साथ एडजस्ट कर दो 30,000 रुपये। अब जो 20,000 रुपये बच गया, इस 20,000 को या तो सीजीएसटी से करो और यूटीजीएसटी एसजीएसटी से किसी के साथ भी एडजस्ट करो, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड। ठीक है, नाउ सीजीएसटी क्रेडिट को हमेशा यूज करना किसके साथ, सीजीएसटी के साथ, और अगर ज़्यादा बच गया तो उसको यूज करेंगे आईजीएसटी के साथ। सेम इज द केस एससीजीएसटी, यूटीजीएसटी। ठीक है, इसके क्रेडिट को यूज किस किस के लिए करेंगे, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी के लिए, सीक्वेंस यही रहेगा। ठीक है, और एक रेस्ट्रिक्शंस है जो बहुत जबरदस्त रेस्ट्रिक्शंस है, वो कहता है कि आईटीसी ऑफ सीजीएसटी कैन नॉट बी यूज फॉर एसजीएसटी और यूटीजीएसटी एंड एसजीएसटी और आईटीसी फॉर एसजीएसटी और यूटीजीएसटी कैन नॉट बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ सीजीएसटी। ठीक है, तो ये जो है एक तरह से बहुत ही जबरदस्त वाला रेस्ट्रिक्शंस है। यहां पे सिर्फ यूज किसके लिए करना है, आईजीएसटी के लिए। आई थिंक ये रेस्ट्रिक्शंस पॉइंट पढ़ने के बाद ये इनपुट टैक्स का क्रेडिट सप्लाई हमें समझ आ गया है। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट। टू डू दिस बिजनेस वन जीएसटी पोर्टल, कॉमन पोर्टल इज मेड, बहुत जरूरी था बिकॉज वैट के टाइम पे सबके अलग अलग पोर्टल होते थे, सबका अलग अलग लॉगिन लेके बैठे रहो,
इमेजिन करो एक बंदा है जो नेस्ले का अकाउंट देखता है, उसके लिए तो सारे यूटी सब स्टेट का अलग अलग लेके बैठे रहो, देखते रहो, इट वॉज डिफिकल्ट। हेयर द रूल गॉट सिंपलर। कैसे? एक जीएसटीएन पोर्टल बना दिया, ठीक है, जीएसटीएन पोर्टल, जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल, जस्ट अ कॉमन जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल, इसका नाम है जीएसटी गवर्नमेंट.इन, स्टैब्लिश करा गया एंड मैनेज बाय जीएसटीएन, ठीक है। हमेशा याद रखना कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनी। देखो ये मेंटेन करता है जीएसटीएन, जीएसटी की जो वेबसाइट है मेंटेन करता है जीएसटीएन, लेकिन द ई वे बिल सिस्टम, इसका ये वेबसाइट है, इज मैनेज बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर निक फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पे इसका ये मैनेज कर रहा है, ये निक कर रहा है। और दो इनवॉइसेस रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा पोर्टल है? इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, आईआरपी, अपलोडिंग रिपोर्टिंग जो भी है अभी ई इनवॉइसेस के चक्कर में, तो उसको कौन मेंटेन कर रहा है? अगेन यही निक थ्रू। और निक किसके अंदर फॉल करता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जस्ट नीड टू बी मेमोराइज, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइटी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर आता है ये निक, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। इन केस एनी क्वेश्चंस मे अराइज इन फ्यूचर, तो तैयारी जीत की रहनी चाहिए हमारे साथ। नाउ कम टू द पॉइंट। साथ में जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, आईटी, आईटीएस एंड फिनटेक कंपनी एज ए जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स। यहाँ पे समझ कम आता है बिकॉज इन द अर्बन सेटलमेंट यू विल गेट लॉट्स ऑफ टैक्स एक्सपर्ट लाइक सीए, सीएमए, समटाइम्स सीएस, एडवोकेट, ठीक है, और भी बहुत सारे प्रैक्टिशनर होते हैं, बंगाली डॉक्टर टाइप में, ठीक है, 200 रुपये में जीएसटी भर देते हैं, ठीक है। चलो कोई नहीं, तो हियर यूल गेट, बट इन रूरल सेटलमेंट इट इज डिफिकल्ट टू हैव दैट वन। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक कॉन्सेप्ट लेके आया जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। तो ये क्या करेगा? जीएसटी सिस्टम डेवलप करने में, एप्लीकेशन बनाने में ये हेल्प कर सकता है। दे प्रोवाइड रोल बेस्ड एक्सेस। देखो वैसे इफ यू विश टू एंटर इनटू जीएसटी पोर्टल, सिंपल सा करता है, एक लॉगिन डाला और पूरी की पूरी पोर्टल के अंदर ना सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने, बट दिस इज इजी फॉर द स्मॉल स्केल वेंडर। लेकिन एक बड़ी कंपनी है जैसे नेस्ले, ठीक है, अब इतनी बड़ी कंपनी का जीएसटी का पोर्टल जो है ना, बहुत सारे मतलब हायरार्की के लोगों को देखना होता है, ठीक है। कोई सिर्फ आईटीसी को देख रहा है, आईटीसी रिकनसाइल कर रहा है, किसी को रिटर्न भरना है तो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट के रिटर्न्स भरने हैं, ठीक है। तो उसको लेके कोई एनुअल रिटर्न के लिए कोई और जिम्मेदार है, तो वहां पे क्या करना पड़ता है? सेगमेंटेशन करना पड़ता है। तो दैट विल बी हेल्पफुल बाय, दैट विल मेड बाय these party. GSP offers solution for professional to manage multiple clients, integrate existing accounting ERP system। कुछ ज़्यादा नहीं है, यूजिंग जीएसपी सर्विस ऑप्शनल। गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला कि ठीक है भाई करना ही करना है, ठीक है। और लास्ट में क्या है? एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर टू फैसिलिटेट द कनेक्शन बिटवीन टैक्स पेयर एंड द जीएसटी सिस्टम। गवर्नमेंट इसको लाने का जरूरत इसलिए था कि एक कॉन्सेप्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। तो गवर्नमेंट को लगा कि इसको लाने की जरूरत है क्योंकि बिकॉज इट विल हेल्प अस टू हैव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काइंड ऑफ थिंग। नाउ कम टू द पॉइंट, कॉम्पनसेशन सेस, ठीक है। सबसे ज़्यादा हल्ला स्टेट ने मचाया था जब जीएसटी आना, जीएसटी का टाइम था इम्प्लीमेंट करने का। स्टेट एक ही बात पे अड़ गए थे, भैया हम तो खूब कमा रहे हैं, दूध और शहद की नदियां बह रही है, मज़ा आ रहा है बिल्कुल वैट के अंदर। तो गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, जब जीएसटी आएगा इट विल बिकम डबल फॉर यू। बोला नहीं ऐसा नहीं मानते हम तो, ऐसा कहने से नहीं होता, कुछ बताओ ऐसा कोई कॉन्क्रीट। तो बोला ठीक है, तथास्तु। वो वाला नहीं इंस्टीट्यूट है, बस तथास्तु। आपको क्या करना है? आपके लिए हमने सेस कॉम्पनसेशन सेस लेके आए हैं, इन केस अगर रिवेन्यू फॉल करता है तो विल गोइंग टू कॉम्पनसेट यू, ठीक है। तो जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस इम्पोज्ड ऑन द जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट के थ्रू, ठीक है। दिस सेस टारगेट स्पेसिफाइड लग्जरी आइटम, ठीक है, लग्जरी आइटम एंड डिमेरिट गुड्स। पढ़ लेना इन दोनों का डेफिनेशन क्या होता है डिमेरिट गुड्स का, ऑल्दो यहाँ पे भी डिस्कस हो जाएगा बिकॉज यूपीएससी को ना एक बहुत अच्छा सा वो होता है कि जो भी सिलेबस में मेंशन है ना उसके उसको और उसके फेरिफेरी एरिया को पूछने का। सच एज मसाला, मसाला कौन सा लग्जरी आइटम है? पान मसाला, सॉरी पान मसाला,
ये तो रिक्शा वाले भी खा लेते हैं, चलो ठीक है, पता नहीं कैसे। टोबैको, एरेटेड वाटर, मोटर कार में भी हो सकता है, एक्सेट्रा, एंड इज कंप्यूटर ऑन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, टैक्सेबल सप्लाई के बेस में द सेस अप्लाई टू बोथ इंट्रा एंड इंटरस्टेट सप्लाईज। ऐसा नहीं एक ही पे लगेगा, दोनों पे। एम्ड एट कॉम्पनसेटिंग द स्टेट रेवेन्यू लॉस ड्यू टू जीएसटी इंप्लीमेंटेशन, और शुरू के 5 साल के लिए, ऐसा नहीं पूरी लाइफ टाइम के लिए दे दिया। ठीक है, पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ देयर एसजीएसटी एक्ट। अब देखो, एसजीएसटी एक्ट का नाम इसीलिए डाल दिया था क्योंकि कई सारे स्टेट जो है ना इसकी वजह से रुके हुए थे, उनको बोला जिस दिन लगाओगे उसी टाइम से मिलना शुरू हो जाएगा फटाफट। तो सब स्टेट ने लग गए और फटाफट काम कर डाला। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। नाउ कम टू द पॉइंट, कैटेगरी, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी एंड एडिशनल ड्यूटीज। ठीक है, so this is probably the last slide for this class. उसके आगे की जानकारी अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप इट इज विजिबल। ठीक है, नाउ डिस्कसिंग कैटेगरी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो अब स्टेट गवर्नमेंट ने ना इसको छोड़ा ही नहीं, बोला भाई ये तो ऐसा कमाई का मेरा मीडियम है, अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो मेरे को मतलब संतुष्टि नहीं मिलेगी। ठीक है, जब भी कुछ कम ज़्यादा होता है मैं इसकी तरफ घूमता हूँ, और पूरे स्टेट में जितने पीने वाले लोग हैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई तू ही है जिसकी वजह से स्टेट चलता है, तो थोड़ा पीना शुरू कर दे, और मैं टैक्स बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, जोक्स अपार्ट, यहाँ पे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जीएसटी एप्लीकेबिलिटी है तो नहीं, एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीएसटी। अभी क्या है, सब्जेक्ट टू स्टेट एक्साइज ड्यूटी एंड जीएसटी एंड वैट। अभी भी इस पे वैट वाला कॉन्सेप्ट चलता है, और एक्साइज ड्यूटी जो है ना स्टेट लगाती है। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। दूसरा, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एयर टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस। ठीक है, ये भी अभी भी क्या क्या करंटली एक्सक्लूडेड, करंटली टू बी इंक्लूडेड फ्रॉम फ्यूचर डेट। इसके लिए बोल दिया है कि भैया अभी जो है ना डेट डिसाइडेड नहीं है, फ्यूचर में करेंगे। अब क्या है इसका, ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इस पे लगता है और सीएसटी एंड वैट लगता है। ठीक है, अब नाउ कम टू द टोबैको, तंबाकू के ऊपर ये जीएसटी के अंदर है, बट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी इसके ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग वाले जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एंड सप्लाई पे नॉर्मल जीएसटी। ओपीएम, इंडियन हेम्प, अदर नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स, ये जीएसटी के अंदर है, बट सब्जेक्ट टू स्टेट एक्साइज ड्यूटीज। स्टेट की एक्साइज ड्यूटी लगती है, और बाकी में सप्लाई के अंदर वही सेम जो जीएसटी। उसके बाद सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट। ठीक है, आप बोलोगे सर इसको यहाँ पे कहाँ से घुसा दिया रियल एस्टेट। देखो कुछ मिला के कभी कभार ये लोग भी ऐसे काम कर डालते हैं जो नारकोटिक सप्लाई के हिसाब से ही बनता है। पैसे ले लिए, घर दिया नहीं, घर दिए, लोचा करवा दिया। ठीक है, सो रियल एस्टेट सेक्टर यहाँ पे बोला है एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीएसटी सेल परचेज ऑफ फर्म मूवेबल, सॉरी सेल परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये सारे क्या है जीएसटी के उससे एक्सक्लूडेड है, लेकिन इसमें जो है ना एक डाल रखा है एक थोड़ा सा प्रोविजन, तो विल डिस्कस दैट प्रोविजन इन कमिंग वीडियोस। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे डिटेल में, ऑल्दो इट विल बिकम अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन नेक्स्ट क्लास ऑल्सो। ठीक है, बहुत सारे जगह पे डिस्कस करना पड़ता है, तो नो नीड टू वरी अबाउट इट। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास, विल टेक सेकंड क्लास इन दिस सीरीज ऑल्सो। तो उसमें करेंगे बहुत सारे जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात है, क्योंकि लास्ट टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन के ना आर्टिकल नंबर पूछ लिया था। ठीक है, तो कुछ आर्टिकल जो इससे रिलेटेड होते हैं ना तो उसको तो पढ़ के जाना है। ठीक है, क्या पता कभी पूछ ले। ठीक है, तो आई होप this will become useful for you. Thank you for your valuable time.